एक minute. So who will tell me the sentence next? Priya, please lower down your hand. Isha, Kushal, unmute yourself. Yes, ma'am. Good morning, Kushal. You want to show Good morning, the ma'am. copy? Yes, ma'am. Good morning. Show me the second paragraph. Show me the second paragraph. First paragraph seen yesterday. मैम Second paragraph, beta. हम सेकंड पैराग्राफ में आधा ही लिखा है. हाँ ठीक है, आधा लिखा वही होता है. ये आपका कल का लिखा हुआ है, आपने आज नहीं लिखा कुछ भी. Please write one more paragraph today. ठीक है? We'll show me Yes, ma'am. in the next class. Thank you. Yes, ma'am. Do you want to say? Tell me the sentence of a test. No. Somebody else. Harshita, unmute yourself. Yeah, Harshita. Good morning, ma'am. Morning, beta. Have you made a sentence? Yes, ma'am. What is the sentence? We should attest the test paper before submitting them. No. Again, the same problem. Only people with authority can attest. So, probably the vice principal can attest. Yes. Pavan, unmute yourself. Yes, ma'am. What is your sentence? And the Prime Minister has the authority to attest. Yes, he definitely has the authority. Yes. Okay. Very nice. Those who have answered, lower down your hand. Tarun, Ishant, I've seen your sentences. Very nice sentences. Tarun had said the signature was attested by 2 witnesses. Very good. Ishant has said I will submit the copy along with the attached file to the principal. Attest kahan hai, Ishant? The sentence is wrong. The word attest should be in your sentence. Ayushi, very good that you are writing something. Vaibhavi says the borrow which covered the plains of ancient Scythia attest the truth of the description. Very technical. You must have searched it from Google. Today, Ronak will revise grammar. Sanskriti said police record attest of his history of violence. No. Attest is verifying. Verifying the official document. So if this is not, police cannot attest the history of violence. No. I can attest that he has stolen my watch. No, you cannot attest. You can state, you can submit, but you cannot attest. Attest word मैंने बोला था किसी government official के द्वारा किया गया. Verify किसी के कागज को. Anyone who lives near airport can attest to the constant noise in the area. Vaibhavi, attach word नहीं है आदित्य. चारू word था attest. A-T-T-E. Attach नहीं है. A-T-T-E-S-T. Why do I want to create a show, Ayushi? Yes, Ayushi, unmute yourself. Ayushi, unmute yourself. What is your query? CM will not attach the attach word ही नहीं है ईशांत. The word is attest. The doctor, yes, Priyanshi is written right. The doctor can attest your medical condition if a work exhumes is needed. Exhumes is the wrong word in this sentence. Some people want a medical certificate. एग्जाम में कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो मेडिकल सर्टिफिकेट लगाते हैं. वो मेडिकल सर्टिफिकेट डॉक्टर अटेस्ट करके देता है. Yes, Muskan, please unmute yourself. Ma'am, may I tell one sentence? Yes, beta. The Prime Minister attest the complete lockdown in red zones. Okay, this is right sentence. You can use it. Okay, so in the next class, we'll come up with a word. Can somebody tell me a word for the next class?
Can anybody tell me a new word? Ria, very good that you've written an article on Taj Mahal. Very nice. Aditya, unmute yourself. Unmute. मैम मैं बताऊं एक वर्ड? हाँ बताइए. मैम गूज़बम्स. Sorry, मैम गूज़बम्स. I'm sorry, I can't hear you properly. Write in the chat box. Anybody give me a suggestion of words? Give me one difficult word for that entire class. Enormity. Enormity means what? Enormous. What is the word? Enormous. Let's take as the word enormous. So next class you will have word is enormous. Yes, I have one word. Thank you. Don't give difficult words. Simple words will make them. Enormous मतलब बहुत बड़ा, huge. इसका मतलब होता है huge. नेक्स्ट क्लास जब अपनी होगी तब आपको ऐसा सेंटेंस बनाना है जिसमें ये शब्द आए. ह्यूज से सेंटेंस मत बनाइएगा, इनॉर्मस शब्द होना चाहिए आपके. नेक्स्ट जब अपन क्लास करेंगे सेंटेंस बना के बताएंगे बच्चे. आई एम राइटिंग इट डाउन so that I will be remembering it also. Yes, Aditi, let's do it in the next time. ठीक है? I've noted your word. I've noted your word, but for next class, the word is enormous. So I think most of the students are here. Let's quickly go for attendance. Important. मैं भी टेस्ट ले लूं और आप बता नहीं पाओ तो क्या फायदा हुआ. So let's just quickly revise. Noun. Who will give me the definition of noun? Please raise your hand. What is a noun? Yes. Divyansh, unmute yourself. Yes. Noun is a name of a person, place, animal or thing. ठीक है. Person, place, animal, thing. इसके अलावा भी एक चीज है. पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग. ये 7th क्लास तक तो ठीक था. इसके अलावा एक चीज और पढ़ाई है मैंने. Yes, Vaishnavi is right. And Muskan, Vaishnavi and Ishan. इसके अलावा था पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. इसके अलावा फीलिंग्स जो आप छू नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं. इसके अलावा होता है प्रोसेस, कोई काम होने की प्रक्रिया जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो लेकिन छू नहीं सकते. एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आते हैं. किसी को याद है? Yes, Pavan, unmute yourself. Ma'am, what? Pavan, you've What is raised the your question? hand. Give me the definition of noun. Ma'am, a word that represents persons, feelings, ma'am, places, things, processes are known as nouns. Sorry, the voice is not clear. कट के आ रही है. Ma'am, So, ma'am, a noun. lower down your hands. So, the complete definition of noun is name of a person, place, animal, thing, feeling and processes also. इनका नाम को हम noun बोलते हैं. Who will give me the types of noun?
We have studied 5 different types of noun. Ria, unmute yourself. Yes, ma'am. Could you please give me the types of noun? Yes, ma'am. Ma'am, there are 5 types of noun. First, proper noun. 5 types of noun. First is Proper noun. Second is common noun. proper noun का क्या मतलब? Ma'am, a particular Proper noun. person, place. Common noun. Then Then collective noun. collective noun. Then Abstract noun. abstract noun. And one more noun. Material noun. Material noun. Material noun. Very good. Very nice. Thank you, ma'am. Lower down hands, those who have answered. Welcome, beta. Yes. Beneath, unmute yourself. Beneath, Yes, ma'am. give me an example of a proper noun. Ma'am, Taj Mahal. Give me an example of each type of noun. Proper noun का example बताइए. Ma'am, proper noun Taj Mahal. Common I'm sorry, noun. voice is not clear. Yeah, either you speak loudly or give me an answer in the chat box. Ayushi, unmute yourself. Yes, Ayushi. Example of proper noun are Assam, Jaipur, Mahatma Gandhi, and example of common noun are Mother, Library, Mugs. Example of collective noun are Common का बताइए. Mother, Library, Lion. Mother, common noun में डाल रहे हैं. Which is common to all. All nahi, mother would not be coming over here. Common to all would be. Somebody else give me an example of a common noun. Tarun, unmute yourself. Yes, ma'am. Examples. Ma'am, proper noun के तो ma'am India, Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi is not a common noun. What is happening in this class? देखिए, proper noun वो होता है जो किसी का नाम हो, person का नाम, place का नाम, thing का नाम, ठीक है? और ये always capital में होता है. ज़्यादातर बच्चों की कॉपी में गड़बड़ है. Proper noun should be in a capital letter. Unmute yourself, Tarun. Yes, ma'am. Yes, Tarun. Common noun is Ma'am, common noun ma'am boys, girls. ठीक है. और ma'am collective noun ma'am army. Yes, collective. Class. कॉमन नाउन में लिख रही हूँ मैं. कुछ भी आ सकता है. लैंग्वेज, ड्रेस, वर्ल्ड, लैंड. आई एम राइटिंग एरिया. कलेक्टिव नाउन में आपने कहा आर्मी. आर्मी इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. एंड नेक्स्ट बताइए. Ma'am, material noun ma'am cotton, gold. यस, कॉटन. जिस मटेरियल से बनी चीजें हैं. एब्स्ट्रैक्ट नाउन. Ma'am, abstract noun में happiness, friendship. Yes. Very nice, Tarun. Thank you. Those who have answered will not raise their hand again.
Those who have answered right or wrong will not raise their hand. Ishant, could you unmute yourself? Yes, ma'am. What is the difference between common noun and collective noun? What is the difference between common and collective? Proper समझ में आ गया नाम है, material समझ में आ गया चीज है, abstract समझ में आ गया feeling, emotion या process है जिसको हम देख महसूस कर सकते हैं पर छू नहीं सकते. Common में क्या problem है? Collective है is a group of people, group of things, group of animals. Common noun तक बताइए. मैम कॉमन नाउन है कि है ना अपन को पता है कि है ना वो अपन को ये तो पता है कि वो नाउन है, लेकिन ये नहीं पता कोई है ना स्पेसिफाई नहीं है अपन को है ना प्रॉपर में नहीं पता कि वो बॉय है तो बॉय क्या नाम है उस बॉय का. कॉमन नाउन पर है वो. बॉय में बहुत सारे आ गए, सब पूरा कॉमन हो गया. Very nice. Thank you, Ishan. Wonderfully explained. देखिए कॉमन नाउन में क्या है, कंफ्यूजन हो रहा है. कॉमन नाउन में बता देती हूँ. पर्सन, प्लेस और एनिमल, थिंग, ये कोई कॉमन हो, एक तरीके के हो, एक जैसे हो, विथ सेम काइंड. अगर ये एक जैसे होंगे तो ये सब कॉमन नाउन में आएंगे. सारी औरतें मदर्स नहीं हो सकती, तो इसलिए मदर कॉमन नाउन नहीं आ सकता, पर बॉयज हो सकते हैं क्योंकि सारे लड़के बॉयज कैटेगरी में आ रहे हैं. कौन सा लड़का ये नहीं पता हमें. तो कॉमन नाउन है पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग जो कि एक जैसे हों, सिमिलर काइंड के हों, उनको कॉमन नाउन में डालते हैं. Yes. Is there any query? Only people with query can raise their hand. Sudhanshu, unmute yourself. Yes, ma'am. Sudhanshu, Yes, ma'am. common noun का एक एग्जाम्पल बताइए. Ma'am, principal, student, man. Please be loudly. Ma'am, student. Yes, very good. And class हो जाएगा collective noun और students हो जाएंगे common noun. क्योंकि students है common और class है group of students. तो आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? जिसको डिफरेंस समझ में नहीं आ रहा, raise your hands. Those who want to answer can lower down your hand. Only students with a problem will raise their hand. जिसको अभी clarity नहीं है. Student, river, ठीक है. Yes, proper noun, common is hospital noun, ठीक है. Very good, Vineet. Yes, Ishant, your answers are right. Yes, doctor is also a common noun. Yes, बोल सकते हैं. Is there any query? Then only raise your hand. Bhavyanshi, what is your query? Unmute yourself. नो मैम, नो क्वेरी, बस मैं हैंड डाउन करने जा ही रही थी, बस कर ही रही थी. किसी को समझ में नहीं आया हो टाइप्स ऑफ नाउन या नाउन तो रेज करिए हैंड. अभी पूछने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अभी आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कॉन्सेप्ट में. नाउन क्या है? पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग के अलावा फीलिंग्स और प्रोसेस, इनके भी नाम को नाउन कहते हैं. ठीक है. 5 तरह के नाउन देखे हमने. प्रॉपर नाउन जिसका कोई स्पेशल नाम मिला हुआ हो, और कलेक्टिव नाउन वो होता है जिसमें कि ग्रुप हो, ग्रुप ऑफ एनिमल, ग्रुप ऑफ थिंग्स, ग्रुप ऑफ पीपल, उसको कलेक्टिव नाउन बोलते हैं. मटेरियल नाउन बोलते हैं जिस मटेरियल से चीजें बनती हैं, चाहे वो मेटल हो, चाहे वो फाइबर हो, किस चीज से बने वो मटेरियल नाउन में आते हैं. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होते हैं जिनको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, पर छू नहीं सकते. यस आदित्य, व्हाट इज योर क्वेरी? अनम्यूट योरसेल्फ. मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैम प्रॉब्लम मैम. किसमें बेटा? मैम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में. Abstract noun. Okay, I'll explain it to you again. देखिए, abstract noun क्या हुआ है? Name of something which we cannot see or touch but we can feel. जैसे कि abstract noun के एग्जाम्पल है faith. मेरा विश्वास है ईश्वर पर.
आई बिलीव इन गॉड, तो मेरा फेथ, बिलीव, ये वर्ड्स जो है ना, ये आते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन में। फेथ, बिलीव, लव, फ्रेंडशिप, हेट, और कौन से इमोशंस होते हैं? एंगर एंड व्हाट आर द इमोशंस? प्रोसेस बताइए, गिव मी एग्जांपल फॉर प्रोसेस। यस, ऑनेस्टी इज आल्सो वन ऑफ द इमोशन। प्रोसेस बताइए। यस, लिबर्टी, happiness we have already covered. Processes, yes, freedom, bravery, and yes, Bhavyanshi, quickly unmute yourself. Yes, what do you want to say? हम जो ये है ना, ये जो मटेरियल नाउन है, मटेरियल नाउन, कहाँ है? मटेरियल नाउन। कौन सा? फिर से समझाऊं? यस मैम। These are all the examples for abstract nouns, जो कि हम ये देख सकते हैं कि जिनको महसूस कर सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, फिजिकली वी कैन नॉट टच, पर ये सारे हमारे इमोशंस हैं जिसको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। मटेरियल नाउन होता है कॉटन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, स्टोन्स, जेमस्टोन्स, ये सब मटेरियल नाउन में आएगा। Now who will tell me the number? नाउन में नंबर और जेंडर दोनों आते हैं, नाउन केस भी आता है। मुझे बताइए, आदित्य अनम्यूट करिए अपने आप को। Yes, ma'am. नंबर का मतलब क्या है? नाउन नंबर। मैम उनके मैम 2 पार्ट्स होते हैं मैम। क्या? मैम एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। वेरी गुड। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। मैम काउंटेबल के भी 2 पार्ट्स होते हैं। काउंटेबल मतलब क्या हुआ? मैम विच कैन बी काउंटेड। एग्जाम्पल? मैम फॉर एग्जांपल पेजेस, बुक्स, कॉपीज, पेन, पेंसिल एक्सेट्रा। पेजेस, बुक्स। और अनकाउंटेबल कौन से हुए? मैम ब्रिक, स्टोन, सैंड, मून्स, ब्रिक, सॉल्ट, ऑयल। नो मैम सॉरी, ब्रिक नहीं, सैंड और ऑयल को भी अपन लीटर ऑयल। में, ऑयल को काउंट कर सकते हैं मैम लीटर शुगर, में। शुगर, शुगर क्यूब अगर है, शुगर क्यूब है तो वो काउंटेबल में आएगा। यस मैम। मैम एयर, हेयर, यस, हेयर, वाटर, इन सबको अपन अनकाउंटेबल में डालेंगे। वेरी गुड, थैंक यू। अब ईशांत, I will not ask from you. You have already answered. Vineet, you have already answered. Please lower down the hand. Give everybody a chance. Divyansh, I think you have also answered. Kangana, unmute yourself. Kangana, quickly unmute yourself. Not listening. Jyoti, unmute yourself. Quickly बेटा, the simple answers. नहीं आते आप मना कर दो कि नहीं आता, but एक बार आप आपको unmute करना चाहिए। Keshav, unmute yourself. See, if I ask you to unmute, you should unmute. Yes, Priyank. Yes, Jyoti? ma'am. Jyoti, could you please? Yes, ma'am. Please give me countable में 2 कैटेगरी हैं। कौन सी 2 कैटेगरी हैं?
अगर आप काउंट कर सकते हो नाउन को तो वो दो पार्ट्स में अपन ने बांटा है. Yes. Priyanshi, unmute yourself. Jyoti, you're not answering. Keshav, could you answer? काउंटेबल नाउन मतलब अपन काउंट कर सकते हैं तो उसकी भी दो कैटेगरी थी. कौन सी? प्रियांकी, you're not unmuting. आयुषी, आप अनम्यूट करिए. Singular and plural. Singular And plural. Thank you. Hold up your hands. और प्लूरल जो एक से ज्यादा है. सिंगुलर का एग्जांपल बताइए. पवन सिंह. पवन गॉन. ओके, आदित्य राज, अनम्यूट योरसेल्फ. यस मैम. एग्जांपल बताइए सिंगुलर और प्लूरल के कोई से भी. मैम सिंगुलर के मैम टीचर, ठीक है. मैम बेबी, टीचर और मैम बुक. सिंगुलर हो गए. और इनका प्लूरल क्या हुआ? मैम इन दोनों जो वर्ड बोले इनका ही प्लूरल बताना है. नहीं, कोई सा भी बता दीजिए. ओके मैम. मैम टीचर्स एंड बॉयज, गर्ल्स. Boys and one more. गर्ल्स, And गर्ल्स, पेरेंट्स. parents. Yes, yes. एक से जो भी ज्यादा है. थैंक यू. एक से जो भी ज्यादा है. Now lower down your hands. Raise hands only if you're not able to understand this. नाउन को जब अपन काउंट करते हैं वो अलग कैटेगरी है और जिस काउंट नहीं किया जा सकता उसकी अलग कैटेगरी है. जो काउंट किया जा सकता है वो या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा. जो एक हो गई चीज जो काउंट कर सकते हैं, वन पेन, तो वो सिंगुलर नाउन में आ जाएगा. और मोर देन वन पेन तो वो प्लूरल नाउन में आ जाएगा. रेज हैंड इफ यू हैव क्वेरी. दिव्यांश, अनम्यूट योरसेल्फ. Ma'am, I was asking that sugar is countable noun or uncountable noun? Sugar is uncountable noun, but if I say a sugar cube, one sugar cube in my cup of tea, then it is a countable noun. Okay. So किस context में कहा गया है? If I say give me 1 kg sugar, then this is a countable person. But if I say this is too sweet, you have put lot of sugar, तो uncountable आएगा. किस context में use हो रहा है? सैंड भी हो सकता है. वन केजी सैंड या अनलिमिटेड ऑफ सैंड ऑन द बीच. बीच की सैंड आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन अगर 1 केजी में आपने ले लिया है तो आप काउंट कर सकते हैं. तो दैट डिपेंड्स अपॉन कंटेक्स्ट. कंटेक्स्ट मतलब किस सेंटेंस में यूज हो रहा है उस पर डिपेंड करता है. अनकाउंटेबल नाउन को भी काउंटेबल किया जा सकता है. पर नॉर्मली सैंड, शुगर, वाटर, ऑयल ये इसमें आएगा. पर इफ आई कैन मेजर देम, सेंटेंस में अगर ये दिख रहा है कि वी आर मेजरिंग, तो वो काउंटेबल नाउन में आएगा. एनी अदर क्वेरी? we'll talk about gender. Give me a question. Raise your hands if you know all the genders of noun. Gender is just not only male and female. We have 4 category in gender. Name them. Same students are there. Everybody should answer. Ishika, unmute yourself. Yes. Ishika, what are the? Yes, ma'am. How many genders we have in noun? Yes, ma'am. जेंडर के टाइप बताइए. कितने जेंडर है नाउन के? नाउन में Ma'am, 4. बताइए, नाम बताइए. Masculine, feminine, common, neuter. Masculine मतलब
मेल, पर्सन और एनिमल। सेकंड है फेमिनाइन मतलब फीमेल, चाहे इंसान हो, चाहे जानवर हो, चाहे चिड़िया हो। और थर्ड कैटेगरी इज कॉमन। कॉमन नाउन में क्या हो रहा है? कॉमन नाउन में बोथ मेल एंड फीमेल, मतलब both male and female। ऐसी कोई प्रोफेशन जो मेल भी कर सकता है और फीमेल भी। एग्जाम्पल बताइए। टीचर, यस टीचर, डॉक्टर एंड पुलिस, यस। जो आदमी औरत दोनों हो सकते हैं। Yes, but parent we are talking about actor, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। अब फोर्थ कैटेगरी जो है वो न्यूटर होता है। न्यूटर का मतलब क्या होता है? ये ज्यादातर नॉन लिविंग थिंग्स के लिए है। नॉन लिविंग थिंग्स मतलब ये पेन है, ये बोर्ड है, टेबल है, ये यस, ये सब क्या है? नॉन लिविंग है, ना गर्ल है ना बॉय है। सो एग्जांपल्स वुड बी टेबल, पेन एंड ब्रश, यस। नॉन लिविंग थिंग्स के लिए न्यूटर जेंडर होता है। नॉन लिविंग, नो मेल फीमेल, इसमें कोई कैटेगरी मेल फीमेल की नहीं हो सकती है। स्लैब, उसके लिए न्यूट्रल जेंडर आता है। बॉक्स, यस। इज देयर कंफ्यूजन इन दिस कैटेगरी? मेल मतलब सारे बॉयज मैस्कुलिन, फीमेल जितने सारे फेमिनिन है। कॉमन नाउन जिसमें मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ज्यादातर अपन प्रोफेशंस में यूज करते हैं इसको। न्यूटर है नॉन लिविंग एटम्स, नॉन लिविंग एटम्स जिसमें कोई मेल फीमेल की कैटेगरी डिवीजन नहीं होता है। नॉन लिविंग थिंग्स, इसका अपन ज्यादातर एक्सरसाइज में आता है, कन्वर्ट करना होता है। आपको ऑप्शन दे रखे होते हैं मेल फीमेल। रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी डाउट। If you have any doubt, quickly raise your hand. I'm not asking questions, so only the yes bucket could be very good example. If you have a doubt, then only raise your hand before we go into the next topic, which is a noun case. Riya, do you have a doubt? Aditya, do you have a doubt? Aditya, unmute yourself. मैम जो आपने मैम कॉमन नाउन बताया मैम, उसमें मैम कोई प्रोफेशनल से ही मैम प्रोफेशनल ही आते हैं उसमें मैम कोई और चीज नहीं आती है? प्रोफेशनल, ज्यादातर प्रोफेशंस दोनों तरह के जेंडर कर लेते हैं, इसलिए अपन ने प्रोफेशंस लिए। और भी हो सकते हैं, बोलिए। मैम You want to give any? हाँ, which example do you want to give? मैम जैसे हेयर हो गया मैम, हेयर मैम मस्कुलर का भी हो सकता है मैम, वो फेमिनाइन का भी हो सकता है। प्लीज चैट बॉक्स में लिखिए, आपकी आवाज वाइब्रेट हो रही है। रिया, यू आर राइटिंग समथिंग, व्हाट इज द क्वेरी? रिया, अनम्यूट योर करिए। यस रिया, यस मैम। व्हाट इज योर क्वेरी? मैम आपने कॉमन में मैम एक्टर लिखा है, मैम एक्टर का तो एक्ट्रेस भी हो सकता है।
हाँ, जैसे डॉक्टर होता है ना, उसमें मेल फीमेल नहीं होता, ऐसे पहले बोला करते थे एक्ट्रेस, लेकिन अभी नई इंग्लिश में एक्टर ही बोलते हैं। दे आर Okay, ma'am. प्रोफेशन है, सिमिलर है, तो इसमें ये कॉमन नाउन में आता है। एक्ट्रेस अपन पहले बोलते थे, जैसे टाइग्रेस होता है ना, पहले बोलते थे, पर नई इंग्लिश में नहीं है। Actress is also right, no problem. Aditya, you have written the question in the chat box, and the question is here. Yes, here I got example. Yes, here is example. Yes, very true. Any other question? No, then let's quickly go into the noun case. I wanted you to solve one exercise for me. So if you can quickly complete this topic. Noun case क्या होता है? Noun case क्या है? Plant. Plant is a common type. Some plants are only female plants, like in case of banana. So that depends what kind of category plants we are talking about. Yes, noun case. कौन समझाएगा? चलिए मैं इसको क्विकली बता देती हूँ। नाउन केस में क्या होता है, एक सेंटेंस जो होता है ये किससे बना है? सेंटेंस के दो टुकड़े होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात करी जा रही है, the things which we are talking about, चाहे वो आदमी हो या कोई नॉन लिविंग थिंग हो, जिसके बारे में बात करी जा रही है वो सब्जेक्ट होता है। और जो बात करी जा रही है, जो कहा जा रहा है, इसके बारे में जो भी कुछ कहा जा रहा है, talking about and जो बात करी जा रही है उसको अपन बोलेंगे प्रेडिकेट। दो इक्वल हिस्से हैं। Bhavyanshi, what is your doubt? I have asked you to not to raise hand while I am explaining. Unmute yourself. Ma'am, What is your doubt? Kindly do not raise your hands when I am explaining a topic, or else you want to teach, I have no problem. अब सब्जेक्ट जो होता है वो ज्यादातर नाउन या नाउन की जगह बदल देते हैं तो प्रोनाउन हो जाता है। यस और नो? कभी कभी ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी बदल जाता है। सब्जेक्ट जो होता है ये एक्शन परफॉर्म करता है, डज द एक्शन। और जो ऑब्जेक्ट होता है, देखिए सब्जेक्ट समझ में आ गया, नाउन या प्रोनाउन जो भी एक्शन परफॉर्म करता है। अब जो प्रेडिकेट है ना, जो बात करी थी, इसके दो टुकड़े हैं। प्रेडिकेट के दो टुकड़े हैं, एक तो है वर्ब, क्या काम कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, और दूसरा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है जो काम कर रहा है। ये तो काम जो कर रहा है और जो काम हुआ है, जिस पर काम हुआ है, वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हुआ है, थिंग्स एक्टेड अपॉन।
things acted upon, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रेसिपिएंट। रेसिपिएंट जिसको मिला है। एग्जाम्पल लेते हैं। यस प्रियांशी, व्हाट इज इट डाउट? अनम्यूट योरसेल्फ। Quickly unmute yourself. Yes, what is it now? Ma'am, can you please give the example of direct and indirect object? If you let me finish and if you do not interrupt me within then only I'll give the examples. No, I was about to give examples and you raised your hand. So that means you assume that I have finished my lecture. This is the last time I'm requesting you to not to interfere when I'm trying to explain something that breaks the rhythm. एक सेंटेंस के दो टुकड़े होते हैं। सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात करिए, और जो बात करी जा रही है वो सब कुछ प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट ज्यादातर नाउन प्रोनाउन होता है और ये एक्शन परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये सब्जेक्ट हो गया। जो प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें होती है? वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट वो चीज जिसके बारे में बातचीत चल रही है ना, उसने क्या किया, कहाँ गया। वर्ब तो है जाना या खाना, उसकी क्रिया हो, और ऑब्जेक्ट वो जो उसने काम करा है। अब ऑब्जेक्ट दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो जो जिस पर काम किया जा रहा है, जो ये सब्जेक्ट काम कर रहा है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो रेसिपिएंट है, मतलब जिसको फाइनली ये चीज मिल रही है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। Rahul threw a ball. राहुल थ्रू अ बॉल। राहुल कौन हो गया? राहुल ने बॉल फेंकी, तो राहुल हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और थ्रू क्या हो गया? ये क्या है? थ्रू क्या है? वर्ब। अ बॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर ये सेंटेंस होता राहुल थ्रू अ बॉल टू सीमा, अगर सेंटेंस ये होता तो बॉल बनाता डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और सीमा बन जाता इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। राहुल ने बॉल फेंकी, तो काम करने वाला कौन हुआ? राहुल। तो राहुल सब्जेक्ट है, ये तो क्लियर है। थ्रू क्या है? वर्ब, फेंकना, ये वर्ब है, ये भी क्लियर है। क्या फेंका? बॉल फेंका। किसको फेंका? क्या चीज फेंकी उसने? बॉल। तो सीमा, सीमा को तो इसको बोलेंगे हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखते हैं। Manas gave me a gift. मनस ने मुझे एक गिफ्ट दिया। किसने दिया? मनस ने। तो मनस क्या बन गया? सब्जेक्ट। गेव क्या है? वर्ब, देना, तो ये बन गया वर्ब। अब इसने क्या किया था? मनस ने क्या किया था? गिफ्ट दिया था।
तो गिफ्ट है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और किसको दिया था? मुझे दिया था, तो मी बन गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसी को समझ में नहीं आया तो क्विकली रेज योर हैंड। एक्सरसाइज अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। देखिए समझने की बात है। मनस्थ देने काम करने वाला व्यक्ति कौन है इसमें? मनस्थ है। क्या काम करा है उसने? दिया है, गिव किया है, तो ये वर्ब हो गया। और क्या दिया है उसने? एक गिफ्ट दिया है, तो गिफ्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है। लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सीधे सीधे जिस पर काम हुआ है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और रेसिपिएंट मतलब मिला किसको है? मुझे मिला है, इसलिए मी बन जाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अपन ने दो टुकड़े कर दिए हैं जब दो जने हैं। अगर सिर्फ यहाँ पे थ्रू अ बॉल तक ही होता, टू सीमा नहीं होता, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। राहुल इज अ सब्जेक्ट, थ्रू इज अ वर्ब और अ बॉल इज अ ऑब्जेक्ट। पर दूसरा एक शब्द और जुड़ गया, सीमा को दी बॉल, तब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए। अब इसमें से डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जो मेन ऑब्जेक्ट है। मेन काम क्या हुआ था वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। और फाइनली किसको मिला? वो इनडायरेक्ट होता है। अब जरूरी नहीं कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस के लास्ट में हो। इस एग्जांपल में सेंटेंस में आगे है, तो इसकी पोजीशनिंग से फर्क नहीं पड़ता, आपको मतलब समझना है। मेन काम किस पर हुआ है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फाइनली किसको मिला है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। रेज योर हैंड्स, quickly raise your hands for confusion. We have only 4 minutes left. I have another class also. Nobody is asking a question. I have another class. We will discuss it with more example and exercise in the next class. Thank you. The time is up, so I'm leaving.